अगर हैं तो ओके, ठीक है. Let us just take a very short class today. So good afternoon. हम लोग कल अपनी क्लास में 2-3 दिन से जो चर्चा कर रहे थे, वो चर्चा थी विशेष रूप से सत्तामूलक तर्क के बारे में. ठीक है, तो सत्तामूलक तर्क में हम लोग क्या कह रहे थे कि चंदन, जो सत्तामूलक तर्क है उसके अंतर्गत हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि एंसेलम के प्रूफ के विरुद्ध कांट का तर्क क्या है. एंड देन वन ऑफ द मेजर आर्ग्यूमेंट्स दैट वी फाउंड वाज दैट कांट वाज ट्राइंग टू से that actually existence is not a predicate, and therefore adding existence or deleting existence will not make a difference. Now, if you are saying that adding existence or deleting existence will not make a difference, then what do you mean and how does it impact the argument given by St. Thomas Anselm? इस पे कल हम लोग ये देखने की कोशिश कर रहे थे कि एल्विन प्लैटिंग क्या कह रहे हैं. तो एक बार ये रोचक बात ये थी, पहले हमने देखा था कि इसको फर्स्टली वी हैव टू कंसीडर दिस आर्गुमेंट एज एन आर्गुमेंट which is trying to do that the contrary leads to a self contradiction. Existence is not a predicate का मतलब क्या हुआ? तो हमने ये देखा था कि कांट ये कह रहे हैं कि जो existence is not a predicate का मतलब है कि it is not a predicate like ordinary things. By adding it or deducting it, you do not add or deduct anything from it. So when you say something has X, Y, Z properties and you add that it is pink, then you are adding one new quality to it. But when you say it also exists, you are actually not adding something to it. इसका विश्लेषण करते हुए कुछ दार्शनिकों ने कहा कि पर ये वाली बात अपने आप में बहुत ज्यादा ontological argument के लिए महत्वपूर्ण नहीं है. This kind of an argument to show that existence is not like a predicate or it is not like the other predicates is not a very important argument against the ontological argument as it is presented by St. Anselm of Canterbury. Now, what is this statement where they're saying? They're saying, yes, it is certainly true that by adding existence to something, you do not add anything to it. But is it meaningless to say that when I say that Taj Mahal is situated in Agra, Taj Mahal is made up of marble, and then I say Taj Mahal exists, am I making a meaningless sentence? And the answer is no, it is not a meaningless sentence. But when I say that Taj Mahal is situated in Agra, Taj Mahal is made up of marble, then what you are actually doing is, and when then so subsequently you say that Taj Mahal exists, you're actually not saying something of the same order as you are saying that it is made up of marble and it's situated in Agra. आप क्या कह रहे हैं? Gottlob Frege, जिनको हम लोग मानते हैं आमतौर पर एक बहुत बड़ा दार्शनिक और एनालिटिकल फिलॉसफी का प्रपितामह जैसे मानते हैं, कई लोग मानते हैं कि he is the grandfather of analytical philosophy because Russell and Moore and all other philosophers draw their inspiration in analytical philosophy primarily from this great German philosopher Gottlob Frege. Gottlob Frege ये कहते हैं कि जो जब हम स्टेटमेंट कहते हैं कि something exists, तो वास्तव में हम उसके बारे में ये कह रहे हैं कि these qualities which we are talking about of the object are instantiated. तो जब हम ये कहते हैं, जैसे हमारे मन में कई तरीके के विचार हो सकते हैं, कई तरीके की चीजें हो सकती हैं, एग्जिस्टेंट चीजों के भी विचार हो सकते हैं और नॉन एग्जिस्टेंट चीजों के भी विचार हो सकते हैं. नॉन एग्जिस्टेंट चीजों में परियां, गॉब्लिन्स, एल्व्स, तरह तरह की चीजें हो सकती हैं. एग्जिस्टेंट चीजों के अंतर्गत हम नहीं मानते हैं कि उसमें ताजमहल, यूनिवर्सिटी, पापा, मम्मी, किताबें, दोस्त, ये सब शामिल होते हैं. So we can have two sets of real and imaginary objects. उनके qualities जो imaginary objects हैं, क्या उनकी qualities नहीं होती? बिल्कुल होती. We would say that Santa Claus wears a red coat. Santa Claus has a sleigh which is driven by reindeers, and Rudolph is one of the reindeers who pulls on the. तो हम ये मान सकते हैं कि जो काल्पनिक चीजें भी हैं, काल्पनिक चीजों के बारे में भी हम ये नहीं कहते कि उनमें गुण नहीं होते. गुण तो होते हैं, लेकिन जब हम ये कहते हैं कि ये वस्तु अस्तित्ववान है, तो हम ये कह रहे होते हैं कि ये गुण वास्तव में घटित हो रहे हैं. They are being instantiated in reality. So now, when we were making a statement that something exists, और उसको उन्होंने कहा कि to exist is actually you are not making any qualitative statement or additive statement. तो वास्तव में फ्रेगे की भाषा में ये होगा कि हम जब ये कह रहे हैं कि so and so thing exists, then we are saying
that the qualities attributed to so and so are instantiated. ये वाली बात अपने आप में टेक्निकली एक महत्वपूर्ण बात है, जो ये बात कहने की कोशिश करती है कि केवल ये कहना, जैसा कांट ने कहा था कि एग्जिस्टेंस कोई प्रेडिकेट नहीं है, ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट उसको प्रेडिकेट मानती है, इस वजह से ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट फेल हो जाता है, ये आर्गुमेंट पूरी तरीके से कामयाब नहीं होगा. दिस आर्गुमेंट विल नॉट बी सक्सेसफुल. व्हाई विल इट नॉट बी सक्सेसफुल? क्योंकि इसका जो ये अजम्पशन है कि कांट ने जो एंसेलम है उन्होंने माना था कि एग्जिस्टेंस इज अ प्रेडिकेट, ये एंसेलम के आर्गुमेंट के लिए क्रूशियल नहीं है. नॉर्मल मैल्कम जब चर्चा करते हैं एंसेलम के ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट की, तो वो एक और बात भी की ओर हमारा ध्यान दिलाते हैं. वो ये बात ध्यान हमारा दिलाते हैं कि नेसेसरी एग्जिस्टेंस और कंटिंजेंट एग्जिस्टेंस वैसे तो एनालिटिकल फिलॉसफी में आमतौर पर नहीं मानी जाती, लेकिन जब एंसेलम ये चर्चा कर रहे हैं तो वो क्या कह रहे हैं और वो किस सेंस में गॉड के बारे में ये कह रहे हैं कि गॉड को नेसेसरी मानना जरूरी है. हाउ आर वी सेइंग दैट इट इज उनका ये कहना है कि अगर हम गॉड को माने कि वो एक कंटिंजेंट बीइंग है, तो कंटिंजेंट का मतलब क्या होता है? जो चीज है और नहीं भी हो सकती है, जो एक समय नहीं थी और एक समय आगे नहीं भी हो सकती है. टेबल्स, चेयर्स, माउंटेन्स, इवन स्टार्स एंड प्लैनेट्स एंड अर्थ, इन सब के बारे में हम ये जानते हैं कि कई कई मिलियन ईयर्स पहले ये नहीं थे और कई कई मिलियन ईयर्स आगे ये नहीं भी होंगे. सो दीज आर कंटिंजेंट इन द सेंस कि ये अपने आप में बहुत लंबी उम्र वाले हैं, बट इट इज नॉट ट्रू दैट कि ऐसा नहीं हो सकता कि ये ना हो. पर इन सब चीजों के बारे में हम इस तरह के प्रश्न कर सकते हैं, व्हाट कॉज्ड देम, और आगे हम लोगों ने कॉस्मोलॉजिकल आर्गुमेंट जो पहले भी पढ़ा था उस पर भी और आगे भी पढ़ेंगे दोबारा. अगर ये आर्गुमेंट बेकार भी मान लिया जाए कि व्हाट कॉज्ड देम इज नॉट अ राइट क्वेश्चन, बट नॉनदलेस these questions are legitimate for every contingent object. जो भी वस्तु जो कि आपातिक है और नहीं भी हो सकती, उसके बारे में ये प्रश्न किया जा सकता है. पहला प्रश्न तो कि उसको किसने उत्पन्न किया. फिर ये प्रश्न भी उसके बारे में किया जा सकता है कि वो जिसको जो चीज उत्पन्न की गई थी वो खत्म तो कब होगी, या वो कितने साल की है, कितनी उम्र हो गई उसकी. हाँ, तो क्या गॉड के बारे में हम ये सारे प्रश्न कर सकते हैं? क्या हम गॉड के बारे में ये कह सकते हैं? हम लोग अवतारों के बारे में तो ये सब प्रश्न करते हैं कई बार, और ईसा मसीह के बारे में भी बात करते हैं, जो कि ये माना जाता है कि ईसा मसीह खुदा के बेटे थे, कि वो कब पैदा हुए और कब उनका कितने बड़े हुए और 50 साल की उम्र में मर गए कि 100 साल की उम्र में मर गए. लेकिन क्या गॉड के बारे में इस तरह के प्रश्न जायज प्रश्न होते हैं? क्या हम ये प्रश्न कर सकते हैं कि हम गॉड के बारे में ये कहें कि गॉड कितने साल का है, वो बूढ़ा हो गया या नहीं हो गया? अक्सर आप देखते होंगे क्रिश्चियनिटी में एक ओल्ड मैन की छवि बनाई जाती है, पर क्या ये वाली बात सही है कि वी कैन वी टॉक अबाउट थिंग्स लाइक दीज? और मैल्कम ये हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं कि रिलीजन में जिस तरह के गॉड की हम बात करते हैं, वी कैन नॉट रेज क्वेश्चंस अबाउट गॉड एज अ टेम्पोरल बीइंग, अ बीइंग व्हिच इज कॉज्ड, which exists in time, has duration, has beginning, has continuity, and will at some given time terminate. तो मैल्कम का जो ये आइडिया है कि हम जब चर्चा कर रहे हैं तो गॉड की नेसेसिटी अपने आप में लॉजिकल नेसेसिटी उस तरीके की, अगर आप कहें कि वो पी और नॉट पी के तरह के कॉन्ट्रडिक्शन हो जाएगा, वैसा कॉन्ट्रडिक्शन अगर आप न भी माने तो भी आपको ये मानना पड़ेगा कि जिस कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो ये तो कह रहे हैं ना कि गॉड का एक कॉन्सेप्ट से ही ईश्वर का अस्तित्व जाहिर होता है. तो ईश्वर के कॉन्सेप्ट में क्या खास बात है? तो ईश्वर के कॉन्सेप्ट में जब हम ये एसोसिएट करते हैं तो प्राय हम कौन से गुण एसोसिएट करते हैं? दैट ही इज omnipotent, he is omniscient, he is all just, he is all perfect, he has all the goodness. पर इन सब चीजों के साथ ही साथ ये वाली बात भी ईश्वर के प्रत्यय के साथ जुड़ी हुई है कि ईश्वर को हम आमतौर पर कॉज्ड बीइंग के रूप में नहीं मानते, टेम्पोरल बीइंग के रूप में इस रूप में नहीं मानते कि इसमें ड्यूरेशन है, बिगिनिंग है, एंड है इत्यादि. तो गॉड के न होने के जो एंसेलम का तर्क है वो क्या कह रहा है? ही इज अ बीइंग the non-existence of which cannot be conceived. वो एक ऐसी सत्ता है जिसके कि न होने की कल्पना नहीं की जा सकती. तो न होने की कल्पना क्यों नहीं की जा सकती? क्योंकि अगर आप उसके न होने की कल्पना कर सकते हैं तो वो गॉड होगा ही नहीं. इस वजह से ये तर्क गलत है.
और ये जो कांट का जो आक्षेप है वो वहां पर सही नहीं बैठता। यहाँ पर मैं आपका ध्यान अगले 10 मिनट में एक और बहुत ही महत्वपूर्ण केंद्रीय विचार के संबंध में आकर्षित करना चाहूंगा, और वो है कांट का दूसरा क्रिटिसिज्म। एक कांट का क्रिटिसिज्म क्या था? दैट एग्जिस्टेंस इज नॉट अ प्रेडिकेट, यू आर एट्रीब्यूटिंग using existence as a predicate, adding which you are talking about it, and therefore तो मैल्कम का भी, प्लाटिंगा का भी ये मानना है कि नहीं, ये वाली बात सही नहीं है पूरी तरीके से। एग्जिस्टेंस को प्रेडिकेट वो नहीं मान रहे हैं, और अगर हम ये मान भी लें कि एग्जिस्टेंस साधारण प्रेडिकेट्स जैसा नहीं है, तो भी हम फ्रेगे के तरीके से मान सकते हैं कि यहाँ पर what we are saying in this sentence is actually that certain qualities are instantiated. ये सारे गुण जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो वास्तव में संसार में घटित हो रहे हैं। दूसरा तर्क जो कांट का है, क्रिटिक ऑफ प्योर रीजन में ही जो उन्होंने दिया है, वो एक तरीके का कंडीशनल आर्गुमेंट है। और वो कंडीशनल आर्गुमेंट क्या है? वो ये कहते हैं कि अगर हम मान लें कि ईश्वर है, तो ईश्वर का प्रत्यय एक ऐसी सत्ता का प्रत्यय है जिससे कि महान सत्ता की कल्पना नहीं की जा सकती। हम लोगों ने दो बातें देखी थी जो आज हम लोगों को केयरफुली देखनी है। एक बात ये थी, गॉड इज अ बीइंग ग्रेटर देन व्हिच कैन नॉट बी कंसीव्ड। दूसरी बात ये थी, गॉड इज अ बीइंग हुज नॉन एग्जिस्टेंस कैन नॉट बी कंसीव्ड। एक तो ये वाली बात ध्यान में रखनी है, क्योंकि अब हम लोग केयरफुली क्लोजली आर्गुमेंट को एग्जामिन कर रहे हैं। But now let us look at the other criticism of Kant. What is the criticism of Kant? Kant says, when we say, and here he is not using the Anselmian argument to prove the existence of God, but he is using the Cartesian argument. और कार्टेशियन आर्गुमेंट कहाँ है? डेकार्ट के थर्ड मेडिटेशन, और डिस्कोर्सल मेथड में भी है फोर्थ सेक्शन में, लेकिन थर्ड मेडिटेशन में वो बहुत स्पष्ट रूप से दिया जाता है। और उसमें वो क्या कह रहे हैं? कांट डेकार्ट कह रहे हैं ईश्वर एक पूर्ण सत्ता है, पूर्ण सत्ता अगर असत्यवान नहीं होगी तो फिर पूर्ण नहीं होगी, और इसलिए ईश्वर के अस्तित्व के विचार में ईश्वर का अस्तित्व उसी तरह से शामिल है जैसे कि त्रिकोण के विचार में ये बात शामिल है कि उसमें 3 कोण होते हैं, या एक सर्कल के विचार में ये बात शामिल होती है कि उसके मध्य बिंदु की दूरी उसकी परिधि से समान होगी। So what is the Cartesian argument? That the idea of existence of God is contained in the idea of God, just as in the idea of a triangle it is contained that it will have 3 angles, or in the idea of a circle it is contained that any point on the circumference will be equidistant from the center. Okay? So these two arguments are given to show, or these two analogies are given, that just as in a triangle, if it is a triangle, it must have 3 angles. If it is a circle, then every point on the circumference must be equidistant from the center. These are the two positions which are compared to the idea of God's concept and the idea if God exists, then it must necessarily exist. इसको भी हम लोग दो तरह से एग्जामिन करेंगे, पर आज एक छोटी सी चीज जो आपको याद रखनी है और आप उसके बारे में सोचिए, और हम लोग उसको पिकअप करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। कांट कहते हैं कि जब आप कहते हैं कि एक त्रिकोण है, तो आप त्रिकोण को अगर मानते हैं तो आप ये मना नहीं कर सकते कि उसमें 3 कोण हैं। उसी तरह से अगर आप सर्कल को मानते हैं तो यू कैन नॉट से दैट the point distance between the circumference and the center is not the same. You can't say that. पर ट्राइंगल में 3 कोण होंगे ही और सर्कमफेरेंस से मध्य बिंदु की दूरी बराबर होगी ही, इससे आप ये कंक्लूजन बिल्कुल नहीं ड्रॉ कर सकते कि कोई सर्कल्स हैं या कोई ट्राइंगल्स हैं। तो इफ यू एक्सेप्ट द सब्जेक्ट, you are compelled to accept the predicate, but it is, you can reject the subject together with the predicate. आप ये कह सकते हैं ट्रायंगल होगा तो उसके 3 कोण होंगे, पर कोई ट्रायंगल है ही नहीं। उसी तरह से वो कहते हैं कि अगर ईश्वर है का प्रत्यय है, तो अगर ईश्वर का प्रत्यय है तो ये अनिवार्य होगा कि वो हो। If there is a concept of God as a being greater than which cannot be conceived, then he must necessarily exist. लेकिन इससे ये बिल्कुल प्रमाणित नहीं होता कि वो है। So you can accept, if you accept the subject, you will have to accept the predicate.
but you can reject the subject along with the predicate. This is Kant's second major argument. Very popular, very influential, and for years together people thought that Baba, this is a brilliant argument by which he has rejected the ontological argument in the version both of the Anselm of Canterbury and in the Cartesian version of to prove the existence of God. पर यहां पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कांट क्या कह रहे हैं. कांट ये कह रहे हैं कि ये एक कंडीशनल स्टेटमेंट की तरह हमें समझना चाहिए. इफ अ ट्रायंगल एग्जिस्ट इट हैज 3 एंगल्स. If a circle exists, then every point on the circumference is equidistant from the center point. So if you accept the subject, you will accept the predicate, but you can reject the subject along with the predicate, as you can do in case of any conditional argument, if-then argument, because the if-then argument is only saying if P is true, then Q is true. It is not making a claim that P is true, nor is it making a claim that Q is true. It is only a conditional statement which says that if P is true, then you will have to naturally accept that Q is true. You can't say that I accept P, but I don't. पर अब यहां पर मुश्किल है, क्योंकि इस आर्गुमेंट को जरा ध्यान से सुनिए. पूरा आर्गुमेंट क्या होता है इफ देन का? इफ अ ट्रायंगल एग्जिस्ट्स, यदि त्रिकोण है. तो यदि त्रिकोण है का मतलब क्या हुआ? यदि का मतलब क्या होता है? हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. नहीं तो यदि क्यों कहेंगे? त्रिकोण है ही कहेंगे. यू मेक अ कंडीशनल स्टेटमेंट, त्रिकोण है. तो यदि त्रिकोण है में ये संभावना है कि त्रिकोण नहीं भी हो सकता. सो द स्टेटमेंट इज actually what is the full statement? If a triangle exists and it is possible for the triangle not to exist, then it necessarily has 3 angles. उसी तरह से if a circle exists and it is possible for a circle not to exist, then every point on the circumference is equidistant from the center. अब यही कमाल का तर्क, यही कंडीशनल तर्क जो कांट सोचते हैं ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट पे भी लगाया जा सकता है. इसको जरा ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट पे लगाकर देखिए. Put it on the ontological argument and see what it looks like. Now the statement will be, if God exists and it is possible for God not to exist, then he necessarily exists. फिर से सुनिए. If God exists, meaning it is possible for God not to exist, then he necessarily exists. जाहिर है ये एक तरीके की absurdity है, क्योंकि अगर आप पहले ये कह रहे हैं कि it is possible for God not to exist, तो फिर then he necessarily exists तो कहा ही नहीं जा सकता. तो जो प्रेडिकेट की नेचर है, वो प्रेडिकेट की नेचर क्या है? गॉड नेसेसरली एग्जिस्ट. ट्रायंगल की के संदर्भ में क्या था? इफ देयर इज अ ट्रायंगल देन इट हैज 3 एंगल्स. उसके अंदर और कोई क्लेम था ही नहीं एग्जिस्टेंस का. यहां पर ये कहा जा रहा है इफ गॉड एग्जिस्ट देन ही नेसेसरली एग्जिस्ट. तो नेसेसरी एग्जिस्टेंस अपने आप में गॉड के कॉन्सेप्ट का हिस्सा है. नेसेसरी एग्जिस्टेंस का मतलब क्या होता है? दैट व्हिच कैन नॉट बी कंसीव्ड नॉट टू एग्जिस्ट. तो आप इसको कंडीशनल फॉर्म में रख ही नहीं सकते. जैसे ही आपने कंडीशनल फॉर्म में रखा तो आपने कहा इफ गॉड एग्जिस्ट एंड इट इज पॉसिबल फॉर हिम नॉट टू एग्जिस्ट, तो आपने पहले ही डिनाई कर दिया कि गॉड नेसेसरी नहीं है. तो फिर आप उसको कंडीशनल कैसे कहेंगे? इफ व्हेन इट इज पॉसिबल फॉर गॉड नॉट टू एग्जिस्ट देन ही नेसेसरली एग्जिस्ट. ये तो अपैरेंटली कॉन्ट्रडिक्शन है. इसलिए जो कांट का ये दूसरा प्रभावकारी, लोकप्रिय और सबसे ज्यादा ताकतवर तर्क माना जाता है, इसको जब हम ध्यान से देखते हैं और इसका एग्जामिनेशन करते हैं तो हम ये पाते हैं कि वास्तव में ये तर्क पूरी तरीके से और मजबूती चाहता है. आई एम नॉट सेइंग दैट कांट्स आर्गुमेंट and Kant's intuition against the ontological argument is wrong. This is generally true of most of Kant's work. कांट के साथ अक्सर ऐसा होता है कि जो वो बात कह रहे हैं वो सही होती है,
लेकिन उसके लिए जो वो तर्क देते हैं और अक्सर उदाहरण जो देते हैं वो अपने आप में थोड़े से प्रॉब्लमैटिक होते हैं। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, कांट की स्कॉलरशिप के बारे में भी हो सकते हैं या हमारी कांटियन स्कॉलरशिप के बारे में भी हो सकते हैं। पर ये एक बड़ी रोचक बात है कि कांट का जिस रूप में तर्क माना गया है, और सारी यूनिवर्सिटीज में दुनिया भर में ये माना जाता है कि भाई दैट इज द बिगेस्ट क्रिटिसिज्म, वन existence is not a predicate, दूसरा conditional argument है, if A exists then B, but this does not mean that A exists because you can reject the subject along with the predicate. पर यहाँ पर ये वाली बात जो मैं आपको ध्यान दिला रहा हूँ उसके बारे में सोचिए, और जब आप लिखेंगे तो आपको पूरी तरीके से दिखाई देगा कि ये पूरा वाक्य अपने आप में कितना अजीब मालूम देता है। If God exists and it is possible for him not to exist, then he necessarily exists. तो ये फॉर्मुलेशन ही अपने आप में जब नॉन सिंबॉलिक वर्जन में होता है, इफ के कॉन्सेप्ट को जब हम ओपन करते हैं तो ये एक तरीके की एब्सर्डिटी को जन्म देता है, जिससे ये मालूम देता है कि यहाँ पर कांट का तर्क जिस रूप में अभी तक समझा गया है उस रूप में ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट को ठीक से प्रभावित करने में समर्थ नहीं होगा। और यहाँ पर फिर मैं इस बात को आपको, क्योंकि अब कल छुट्टी हो जाएगी, हम लोग मंडे को फिर से पिकअप करेंगे, एक और बात को याद दिला दूं क्योंकि मैंने पिछली क्लास में भी आपसे कही थी कि नेसेसिटी का आइडिया लॉजिकल नेसेसिटी के साथ ही साथ एक नेचुरल नेसेसिटी का आइडिया प्राचीन ग्रीक दर्शन से, अरिस्टोटल के जमाने से वेस्टर्न फिलॉसफी में लगातार कायम है, और जो भारतीय दर्शनों में भी अक्सर पाया जाता है। पर भारतीय दर्शनों में पाए जाने में कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कंप्लीटली फॉर्मल लॉजिकल नेसेसिटी जैसे चर्चाएं बहुत कम ही हैं। तो यहाँ पर तो बल्कि चर्चा जनरली होगी अगर अनिवार्यता की तो वो मेटाफिजिकल नेसेसिटी की ही होगी। और पिछले सालों में खासतौर से 1970 के बाद से और 1980 के बाद से हम ये देखते हैं कि कुछ बहुत ही बड़े लॉजिशियंस जैसे जाको हिंटेका, सॉल क्रिप्के, एल्विन प्लैटिंगा और इन सब लोगों ने जो चर्चाएं की, उन चर्चाओं में एक बार फिर से हम मेटाफिजिकल नेसेसिटी, एपिस्टेमिक एप्रायरिटी, लॉजिकल नेसेसिटी और सिंटैक्टिकल एनालिटिसिटी को अलग अलग करने की डिमांड देख रहे हैं। और इन लोगों का ये मानना है कि वास्तव में इन जब क्योंकि हम ऑन्टोलॉजिकल आर्गुमेंट के अंतर्गत अनिवार्यता की चर्चा कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि ये विचार और की जो कांटियन समझ है वो ज्यादातर लोगों ने एनालिटिकल फिलॉसफी से ली, जिसमें वो ये मानते हैं कि कोई चीज अगर एप्रायर है तो वो नेसेसरी भी होगी और नेसेसरी है तो एनालिटिकल भी होगी, पर ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। तो पिछले 20-30 साल में एक तरह से हम पुनर्पाठ देख रहे हैं अनिवार्यता के प्रत्यय का, और क्योंकि ईश्वर की सत्ता के संदर्भ में भी ये माना जाता है कि वो एक अनिवार्य सत्ता है, तो इसका भी हमें पुनर्पाठ करने की आवश्यकता होगी। सो थिंक अबाउट इट, और कोई अभी सवाल हो तो पूछ सकते हैं, बाकी हम लोग we'll take this up in the next class. Any questions? Any question? कोई सवाल? कोई सवाल? No, sir. I don't have any questions. No, sir. कोई सवाल नहीं है? Sir. ठीक है बेटा. No, sir. So we all then catch up on Monday. ठीक है? Okay.